Lecture for today is going to be on the topic of anxiety disorders and what basically is meant by anxiety. What are the different symptoms that are exhibited when a person goes through anxiety? What are the different types that are further differentiated for the disorder? So we are going to do a general overview of anxiety disorders, but that general overview will be in point detail as well. So first of all, we're going to define anxiety. Defining anxiety, it is an emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts, and physical changes like increased blood pressure. People with anxiety disorders usually have recurring intrusive thoughts or concerns. They may avoid certain situations out of worry. Now, this definition has been taken from the American Psychological Association, like this is the official definition of anxiety. If I just try to divide it into different parts so that you can understand it. First of all, हम बात करते हैं कि what is it? It is an emotion. हमने emotions की बात की है, बहुत different तरह के emotions जो उनको experience करते हैं. So anxiety is one of the emotion. लेकिन ये emotion किस तरह से recognize होता है, किस तरह से characterize होता है? This emotion causes feelings of tension. You have recurrent thoughts that worry you. आपके physical changes आते हैं, आपका जो sympathetic division है वो activated होता है. Then people with anxiety disorders usually have recurring intrusive thoughts. Intrusive thoughts का मतलब ये है कि आपको ऐसे ख्यालात आते हैं या ऐसे आपके concerns होते हैं जो कि आपको normal day to day life में intrude कर रहे हैं. They are intruding your normal functionality, like they are intrusive, ठीक है? And because of having such thoughts and because of having such physical experiences and symptoms, people they generally avoid general situations, different certain situations जो उनको लगता है कि this may cause anxiety. Now, what is it like to experience anxiety? First of all, anxiety is something that is very normal. It is very normal to experience anxiety. It is a function of your general mind. ठीक है, आपका जो day to day life में anxiety होना is a normal thing, ठीक है? But when it becomes intrusive enough, जब वो आपकी life की functionality को affect करना start हो जाती है और जब आप उसको अपनी life पे इस तरह से उसका असर होता है कि आपकी जो normal functioning है, आपकी daily life जो है, जो आपके tasks हैं life के वो affect होने start हो जाते हैं, then it becomes a disorder. Now, anxiety is a normal emotion and it is your brain's way of reacting to stress and alerting you of potential danger ahead. Everyone feels anxious now and then. For example, you may worry when faced with a problem at work before taking the test or before making an important decision. Generally, about common example, when you have to make call to someone who is elder than you, बहुत सोच समझ के phone कर रहे होते हैं, and when you are dialing the number and waiting for the person to respond, आपका एक general reaction होता है that you feel a bit stressed out. आप थोड़ा सा वो जो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट काइंड ऑफ फीलिंग होती है जहाँ पे आपको थोड़ी सी धड़कन तेज होती है, जहाँ पे आपको हल्का सा पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, आप थोड़ा सा एकदम से घबराते हैं कि मैंने किस तरह से बात करनी है कि वो बंदा या बंदी जो है वो ऑफेंड ना हो जाए. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, ठीक है? यानी कि एंजाइटी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. नाउ ओकेजनल एंजाइटी इज ओके, इट्स फाइन, कुछ नहीं होता. बट एंजाइटी डिसऑर्डर्स तब बन जाते हैं जिस टाइम पे आप उनको अपनी लाइफ के अंदर के जो लाइफ की जो एस्टैब्लिश सेटअप है आपका, जब वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है. यानी कि देयर आर ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेसेस दैट कॉज कांस्टेंट एंड ओवरवेलमिंग एंजाइटी एंड फियर, ठीक है? नाउ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एज द नेम इन द टॉप इज सेइंग डिसऑर्डर्स, ये एक डिसऑर्डर नहीं है, it is a cluster of disorders, ठीक है? The excessive anxiety can make you avoid work, school, family get-togethers, and other social situations that may trigger or worsen your symptoms. Now let's move on to discussing what are the different types. कि हम जिस तरह बात करें, it's a cluster of different disorders जो anxiety disorders के spectrum में आता है. So we're going to discuss कि under the umbrella of anxiety disorders क्या क्या चीजें पाई जाती हैं. First of all, generalized anxiety disorder, जहाँ पे आप generally आपको anxiety feel होती है, इसका कोई specific reason नहीं होता, आप unrealistic तरीके से बहुत ज़्यादा tension में होते हैं, stressed out होते हैं, आपकी जो thoughts हैं वो intrusive हो रही होती है, but you cannot identify a reason for that, ठीक है? Now, panic disorder जो होता है, panic disorder, we will do all these in details as well. So I'm just going to brush through the types quickly, ठीक है?
पैनिक डिसऑर्डर में एक स्पेसिफिक चीज होगी जिसकी वजह से आपको बहुत सडन इंटेंस फेयर होगा, और उस फेयर की वजह से इट इज वेरी लाइकली कि आपको पैनिक अटैक हो जाए। पैनिक अटैक जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे आपको चेस्ट पेन होता है, आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत आसमानों को बात करती है। पैल्पिटेशन इज बेसिकली हाइपरटेंसिव होने की वजह से आपकी हार्ट बीट जब बहुत तेज हो जाती है, जो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाती है, देन इट्स कॉल्ड हाइपरटेंसिव होना, ठीक है। इट इज पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपकी जो नॉर्मल पल्स है जो कि आपकी 75 to 80 होनी चाहिए, वो आपकी कहीं 90s में, 100s में, उससे भी आगे जा रही होती है। Then sometimes you may feel like you're choking or having a heart attack, यानी कि पैनिक अटैक हम ये डिटेल में मजीद लेके जाएंगे when we will discuss the disorder in the next lecture इंशाल्लाह। देन सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कि आप सोशली फोबिक हैं, आप लोगों से मिलने से परेशान होते हैं, आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हैं, आप डिफरेंट सोशल सिचुएशन में जब जाते हैं तो आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि शायद दूसरे लोग आपको जज कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा फील कर रहे होते हैं कि यू आर बीइंग एम्बैरेस्ड और समथिंग, ठीक है। स्पेसिफिक फोबिया ये होता है कि अभी हमने पैनिक डिसऑर्डर की बात की है, ये इंटेंस फेयर है, ठीक है। स्पेसिफिक होता है टू समथिंग, टू सम स्पेसिफिक ट्रिगर होता है, लेकिन जो आपका स्पेसिफिक फोबिया है वो पैनिक से रिलेट करता है कि आपका पैनिक डिसऑर्डर जिस टाइम पे एक स्पेसिफिक चीज से रिकरेंटली होना स्टार्ट हो जाए, आप उसको बहुत एक्टिवली अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, तो वो आपका फोबिया डेवलप हो जाता है। यानी कि इट कैन बी एनीथिंग दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ, ठीक है। लेकिन नॉर्मली व्हेन यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग एंड you have no choice but to do it, but to face it, और आप उसको फेस करके ओवरकम कर लेते हैं फेयर को, दैट इज अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन अगर आपको उस चीज को फेस करने में इंटेंस एंजाइटी होती है या आपका पैनिक ब्रेकआउट हो जाता है, तो इन सच काइंड ऑफ अ थिंग वो आपका फोबिया डेवलप हो रहा होता है। इट इज अ इंटेंस फेयर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिचुएशन, यानी कि यू माइट बी अफ्रेड ऑफ वाटर, आप हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, आप टाइट क्लोज स्पेसेस होती हैं, यू कैन बी फोबिक ऑफ देम व्हिच इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। आप सोशली फोबिक हो सकते हैं कि आप सोशल सिचुएशंस में जाने से डरते हैं, ठीक है। यू कैन बी स्कैर्ड ऑफ माउंटेन्स, यू कैन बी स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, यू कैन बी स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग, देयर आर डिफरेंट थिंग्स जिनसे आप फोबिक हो सकते हैं। यू कैन बी अफ्रेड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एज वेल। Then agoraphobia, you have an intense fear of being in a place where it seems hard to escape or get help if an emergency occurs. For example, there are people who are afraid to be in a lift. ये जो आपका generally आपकी जो lift होती है, they are afraid to be in that because they think अगर कोई emergency situation होती है, if anything happens, they won't be able to escape it, and they feel that they are being endangered to that particular because of that particular situation जिसके अंदर वो उस टाइम पे हैं, जिसकी वजह से they might have a panic breakout or they might feel anxious। जिस तरह से कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, या फिर किसी क्राउड में अगर खड़े हुए हैं, किसी बहुत बड़े मजमे में गए हैं अगर, तो it's possible कि they are being phobic of the situation। Why? Because अब just giving a small example कि जिस टाइम पे हमारे मुल्क में टेररिस्ट अटैक्स बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गए, तो what happened कि people were generally scared of going to social gatherings or huge gatherings, public places पे नहीं जाते थे, just because of the fear कि कहीं हम ऐसी जगह पे ना हो जाए, उस जगह पे प्रेजेंट ना हो कि एकदम से कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, कोई सुसाइड बॉम्बर ना आ जाए। So these things triggered agoraphobia, ठीक है। Then separation anxiety. Separation anxiety generally बच्चों में पाई जाती है, which is a very normal function of children. इसके अंदर ये होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा anxious feel करते हैं जब उनका कोई closed, यानी कि for example उनके parents जब उनको कुछ time के छोड़ देते हैं अकेले, तो they start having separation anxiety. But सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर किस तरह बनता है कि इफ यू फील वेरी एंशियस और फेयरफुल, जब एक बंदा जो आपके बहुत करीब है वो एकदम से आपकी आंखों से ओझल हो जाता है, आपकी नजरों की आंखों से हट जाता है, तो आप अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, अगर आपका जो एंजाइटी हो वो बहुत ज्यादा फ्रीली फ्लोटिंग हो जाती है, दैट मींस कि आपको सेपरेशन एंजाइटी हो रही है। यू ऑलवेज वरी दैट समथिंग बैड मे हैपन टू योर लव्ड वन, ठीक है। सेपरेशन एंजाइटी जनरली अगर हम नॉर्मल फंक्शनैलिटी में बात करें तो ये पेरेंट्स में भी पाई जाती है, ये चिल्ड्रन में भी पाई जाती है। यू हैव सेपरेशन एंजाइटी लिंक्ड टू योर फ्रेंड्स एज वेल, तो दैट इज अ नॉर्मल सोशल फंक्शन, ठीक है। बट व्हेन इट गेट्स टू योर नर्व्स एंड व्हेन इट स्टार्ट्स टू डिस्टर्ब योर फंक्शनैलिटी, अब यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन सेपरेशन एंजाइटी किक्स इन, यू डू नॉट लेट द पर्सन लीव योर साइड। आप उस अपनी तो लाइफ को ऑब्वियसली थोड़ा सा अफेक्ट कर ही रहे हैं, बट आप उस बंदे की या उस चीज की या व्हाटएवर द थिंग इज, आप उसकी भी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्टिव म्यूटिज्म आपकी सोशल एंजाइटी है। सोशल एंजाइटी का मतलब है कि जब आप किसी ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन में होते हैं जहां पे आपको लगता है कि आप
सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, या यू माइट एम्बेरस योरसेल्फ, या फिर पीपल माइट मेक फन ऑफ यू, या फिर देयर इज सम अदर रीजन जिसकी वजह से आप बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि आप बोलेंगे तो इट विल कॉज यू एंजाइटी, या आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, या लोग आपको कुछ जज करेंगे या आपको एनालाइज करेंगे, उसकी वजह से आप सिलेक्टिवली म्यूट कर लेते हैं अपने आप को, बोलना बंद कर लेते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन। ना फॉर एग्जाम्पल पीपल हु टॉक नॉर्मली विद देयर फैमिली डोंट स्पीक इन पब्लिक, यानी कि वो जिस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ वेल एडजस्टेड होते हैं, उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने की आदत होती है, तो वो हर किसी से नहीं उस तरह से बात करते। देन मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि अब सिंपल आपकी कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ आपके इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो आप अगर लेते रहें फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, और फिर आप उनको लेना बंद करते हैं अगर, तो जो विथड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं दैट विल कॉज सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, यानी कि उनके सिम्टम्स वही होंगे, इट विल नॉट बी एन एंजाइटी डिसऑर्डर बट इट विल बी अ कोमोर्बिडिटी ऑफ मेडिकेशन इंड्यूस्ड, यानी कि आपका विथड्रॉल है या फिर एक्सेसिव यूज है उसका। Now, what are the symptoms of anxiety disorder? First of all, आपको main symptoms जो होते हैं वो तो it is identified by excessive fear or worry. Main distinguishing feature इसका ये है. But anxiety disorders also जिस टाइम वो आपका panic stages start होती है, उस टाइम पे it makes it hard to breathe, sleep, stay still and concentrate. You cannot stay still, यानी कि आप continuously कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप move कर रहे हैं, आप concentrate नहीं कर पा रहे किसी particular चीज पे, आप बहुत ज़्यादा procrastinate कर रहे हैं काम को करने के लिए, you're trying to make it like आप कोशिश करते हैं कि उस चीज को आप मुसलसल थोड़ा सा फोरगो करते रहें, आप उसको थोड़ा सा डिले करते रहें, बिकॉज डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क, आई जस्ट शेयर दिस फॉर स्मॉल काइंड ऑफ इसको लाइफ नोट समझ लें, अपने लिए कुछ भी समझ लें, बट देयर इज दिस थिंग आई रेड अ फ्यू months ago, maybe a year ago, it went something like procrastination generally ये होता है कि जब आपको पता है कि आपने काम करना है, it is something important, but you are not being able to do it, ठीक है, यानी कि आप end time तक उसको लेके चल रहे हैं, आप उसको टाइम से नहीं कर रहे, आप बिल्कुल जिस टाइम डेडलाइन बिल्कुल सर पे, आप उस टाइम पे जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। Now I read this somewhere कि when you see yourself procrastinating about something, ठीक है, यानी कि आप उस चीज को डिले किए जा रहे हैं, then you need to ask yourself that what is it about that particular task, that particular thing that you have to do, that you don't have a choice कि आपको वो करनी है, but what is it about that particular thing जो आपके अंदर ये procrastinating behavior जो है इसको trigger करती है, क्योंकि जो procrastinating behavior होता है आपका कि आप एक काम को end time तक लेके जा रहे हैं, आप नहीं motivated हैं कि वो आप काम करें, आपका दिल नहीं कर रहा, या आप जानते हैं कि आपने वो करना है, जरूरी है, but even then you are delaying it, then there must be something about that particular task जो आपकी कहीं ना कहीं anxiety को trigger कर रही है, and your behavior related to that particular task is कि आप उसको डिले किए जा रहे हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर एंजाइटी से ना गुजरें। सो आई जस्ट वांटेड टू से दिस ओवर है कि आपका जनरली आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, आप फोकस करके नहीं कर पा रहे टास्क के ऊपर, तो इट आल्सो कैन बी सिम्टम कि आपकी उस चीज के रिलेटेड, अब दैट कैन बी अ नॉर्मल डे टू डे एंजाइटी एज वेल, मैं ये नहीं कह रही कि वो डिसऑर्डर है, ठीक है, डू नॉट टेक दिस एज दैट, एंजाइटी इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। Okay, let's just discuss the common symptoms. First of all, panic, fear, and uneasiness. You cannot stay at rest. You feel endangered. You feel panicked. आप बहुत ज़्यादा restless feel करते हैं. आपको सोने में problem होता है. It can either be sleeping too much, जिसको hypersomnia कहते हैं. It can be insomnia, कि आप बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे. Then not being able to stay calm and still. यानी कि आप normal situation में जहाँ कोई trigger भी नहीं मिल रहा आपको, आप उस time पे भी अपने आप को at rest, relaxed नहीं रख पाते, आप एक्सेसिवली वरी कर रहे होते हैं किसी भी चीज के लिए। कोल्ड, स्वेटी, नम और टिंगलिंग हैंड्स और फीट, यानी कि पीपल हु हैव एंजाइटी दे हैव शिवरिंग हैंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, और दे हैव कोल्ड हैंड्स, या उनके हाथ जो है वो हर टाइम पे थोड़े से स्वेटी होते हैं, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप कोई भी काम करने लगते हैं, एनीथिंग दैट यू आर अबाउट टू डू, आपको सांस फूलने लग जाता है, आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है, आप हाइपर वेंटिलेटेड होते हैं, एंड आपकी हार्ट की पाल्पिटेशंस बहुत ज्यादा हो रही होती है, यानी कि आप नॉर्मल हार्ट रेट जो आपका पल्स रेट होता है, यानी कि जो 75 to 80 होता है आपका पर मिनट, उससे काफी ज्यादा आपका पर मिनट रेट है। इट कैन बी अबव 100, इट कैन बी 90 अबव, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एंजाइटी दैट यू आर हैविंग।
ड्राई माउथ, आपको प्यास ज्यादा लगती है, आपको नॉजिया होता है. सो नॉजिया बेसिकली इज एन अकोमोडेटिंग सिम्टम बिकॉज ऑफ अदर फिजिकल सिम्टम्स कि आपके मसल्स टेंस हैं, आप सो नहीं पा रहे, आप सही से खा पी नहीं पा रहे, आप बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा उसमें है अलर्ट मोड में, और जिस टाइम आपकी बॉडी अलर्ट मोड में होती है आपका स्टमक जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होता है, वो उसकी तरफ ब्लड का प्रेशर नहीं होता, ठीक है, इट्स नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग, उसकी वजह से आप नॉशियस हो सकते हैं. Then tense muscles, why? Because आप alert mode में, activated mode में है, आपका sympathetic division active है, आप flight या fight mode में, तो आपके muscles जो हैं, जो आपकी extremities हैं, यानी कि your hands and your feet, they will be tensed. आपके जो upper body muscles हैं वो भी tense होंगे. Dizziness, nausea है तो साथ में dizziness भी हो सकती है. I'm thinking about a problem over and over again and unable to stop. इनको ruminatory thoughts कहते हैं, intrusive thoughts कहते हैं, यानी कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, you cannot shake it off. आप उसको नजरअंदाज नहीं कर पा रहे, टाइम एंड टाइम अगेन आप बार बार उसी चीज के बारे में मुसलसल सोचते हैं. देन इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, यानी कि आप अपनी टास्क पे, जैसा पहले हमने बात की, यू आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस ऑन दैट. एंड लास्टली इंटेंसली और ऑब्सेसिवली अवॉइडिंग फियर्ड ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस, यानी कि जब आपको लग जाए पता कि दिस द पर्टिकुलर थिंग दैट मेक्स मी वरीड लाइक दिस, तो आप उस चीज को एक्टिवली अवॉइड करना स्टार्ट कर लें, और इतना ज्यादा अवॉइड करें कि वो बिकम्स something that you cannot compromise on. ठीक है, moving on. Now, how to differentiate between everyday anxiety and an anxiety disorder? We're just going to go through it very quickly so that आपको थोड़ा सा एक understanding develop हो जाए कि everyday anxiety किस तरह की होती है, which is a normal thing, and उसके against आपकी anxiety disorder जो होता है वो किस तरह का होता है. Because at this stage you might be thinking, यार मेरे साथ भी ये सब कुछ हो रहा होता है. तो one thing that I want to point out over here is that whenever you're studying a disorder, being a psychology student, जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, please do not apply it to your own self, no matter what, no matter how much you think कि ये सारा कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, but you are not at a stage to diagnose anything about anyone, and specifically self diagnosis जो होता है, because आप जिस टाइम पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो आपको इंटेंसिटी का नहीं पता होता कि what kind of intensity is needed for something to be a disorder, ठीक है, but you think कि ये तो मेरे साथ भी हो रहा होता है. तो just इस वजह से मैंने ये कंपैरिजन डाला है ताकि आप समझ सकें कि एवरीडे एंजाइटी इज अ नॉर्मल थिंग, दैट्स फाइन. आप उस चीज की बेस पे कहीं ये ना कहने लग जाए कि यार मुझे तो बहुत एंजाइटी है या मैं तो डिसऑर्डर हुआ है. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट. नाउ एवरीडे एंजाइटी इंक्लूड्स वरीइंग अबाउट पेइंग बिल्स, लैंडिंग अ जॉब, रोमांटिक ब्रेकअप और अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि आप लाइफ के जो आपके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो टास्क हैं, उनको लेके आप परेशान होते हैं क्योंकि आई हैव टू पे द बिल, आई हैव टू गेट अ स्टेबल जॉब, आई हैव to make a career, I have to get in, for example, I have to get married, I have to see if I get married to a person, what kind of a person that guy or that girl is, ठीक है. But that is an everyday anxiety, ये रोजमर्रा की परेशानियां हैं जो कि आती जाती रहती हैं, you're not obsessed with them, ठीक है. Anxiety disorder में जिस टाइम पे आपके जो daily life के issues होते हैं ना, these are constant and constant and unsubstantiated worry that causes significant distress and interferes with daily life. आपने bill pay करना है, ठीक है. Just I'm going to discuss this one particular example. If, for example, आपको social anxiety है, आप socially phobic है, ठीक है, and you want to avoid social gatherings, ठीक है. Now you have to pay a bill. अब उसमें क्या होगा कि you will be planning what to do, ठीक है. You will be planning how to do it, you will be planning the time, you will be planning how and what things that you will need. आपने कितने पैसे लेके जाने हैं, आपने किस तरह से जाके काउंटर पे कैश देना है, आपने किस तरीके से, लेकिन आप एक्सेसिवली उस चीज के बारे में इतना सोचने लग गए रात को कि आप सोए नहीं हैं पूरी रात, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आप सोए नहीं पूरी रात और सुबह उठ के. नाउ दिस इज एक वन एग्जांपल, ठीक है. दिस इज वन एक्सेसिव थिंकिंग एंड कांस्टेंट वरी अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग. अब ये जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसी तरह से हर चीज के बारे में बहुत सोचते हैं. आप अगर कुछ इस तरह के पेजेस को फॉलो करते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा अकाउंट्स देख सकते हैं जो कि एंजाइटी या डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. वहां पे आपको इस तरह की काफी एग्जांपल्स मिलेगी कि हाउ पीपल विद एंजाइटी इवन हैव इश्यूज इन ऑर्डरिंग देयर फूड. उनको नहीं पता होता कि मैंने किस तरह से ऑर्डर करना, बिकॉज फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग एट सबवे बहुत से लोगों के लिए एंजाइटी प्रोड्यूस कर रहा था. व्हाई? बिकॉज उनको लगता है कि हम किस तरह से उनको बताएंगे कि क्या क्या चीजें डालनी है इसके अंदर, या वी डोंट नो इनफ,
ठीक है। तो these things are daily anxiety. अब daily anxiety में anxiety disorder में डिफरेंशिएट थोड़ा सा इस बेसिस पे होता है कि आपका जो वो वाली anxiety है, it causes a disruption. आप बिल पे कर नहीं कर पाए बिकॉज आप पूरी रात उसके बारे में इतना ऑब्सेसिवली सोचते रहे थे, इतना ज्यादा वो इंट्रूसिव थॉट्स थी कि आप सो ही नहीं सके, ठीक है। Then embarrassment or self consciousness in an uncomfortable or awkward social situation. बहुत नॉर्मल है, आप पहली दफा किसी इंसान से मिलते हैं, यू गेट कॉन्शियस, आप अपने बारे में बहुत ज्यादा देख होते हैं, या फिर आपको लग रहा होता है कि द पर्सन दैट यू आर टॉकिंग टू और कन्वर्सिंग विद इज नॉट समवन दैट यू कैन ट्रस्ट, या आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती, तो इट्स वेरी नॉर्मल टू फील एंग्शियस, ठीक है। देन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इस तरह का हो कि अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस टोटली, यानी कि आप बिल्कुल जाना ही बंद करते हैं बिकॉज आपको लगे कि आप कहीं जाएंगे तो यू विल बी जज, यू विल बी एम्बैरेस्ड एंड यू विल बी ह्यूमिलिएटेड बाय द पीपल प्रेजेंट देयर, तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करें ना दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप जहां भी जाएंगे आप एम्बैरेस्ड हो जाएंगे, पीपल विल ह्यूमिलिएट यू और जज यू, इज अ वेरी मतलब अनजस्टिफाइड सी बात है ये, ठीक है। तो इस तरह हो भी नहीं सकता। तो पीपल हैव एंजाइटी फील के जो उनकी अनजस्टिफाइड थॉट है वो जस्टिफाइड है फॉर देम, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सिग्निफिकेंटली अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं चीजों को। Then a case of nerves or sweating before a big test, business presentation, stage performance or other significant event. Stage anxiety लोगों को होती है, public speaking के time पे anxiety होती है, test anxiety is a normal thing. आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, बहुत नॉर्मल है कि आप एंशियस हो रहे हो। नाउ दैट काइंड ऑफ एंजाइटी इज एक्चुअली पॉजिटिव एंड इट इज हेल्दी फॉर यू, ठीक है। बट आपको एंजाइटी डिसऑर्डर में आउट ऑफ द ब्लू पैनिक अटैक्स होते हैं, यानी कि देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन, आपको किसी भी टाइम पे किसी भी ट्रिगर की वजह से एक पैनिक अटैक या एंजाइटी इतनी बिल्डअप होती जाती है कि इट फाइंड्स इट्स वे आउट थ्रू अ पैनिक अटैक, ठीक है। नाउ अभी I cannot ask you to like notice people around you जिनको इस तरह हो because you're not at that level, but panic attacks अगर आपको कभी लाइफ में देखने का मौका मिले तो आपको समझ आएगी कि it is not something that is linked with any particular situation, वो किसी भी टाइम किसी भी वजह से हो जाता है। सोया हुआ बंदा एकदम से उठ के उसको पैनिक अटैक आ सकता है, ठीक है। सो इट इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड जब आपको पैनिक अटैक्स आ रहे होते देन यू आर वेरी मच प्री ऑक्यूपाइड एंड यू आर वेरी स्केयर्ड कि दोबारा ना आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आप चीजों आपको बहुत ज्यादा फ्रीली फ्लोटिंग एंजाइटी होती है विदाउट एनी रीजन आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। Then realistic fear of a dangerous object, place or situation. For example, I am scared of snakes. ठीक है, मुझे मैं थोड़ी सी स्पोफोबिक कहे जो भी कहे, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, ठीक है। लेट मी जस्ट डिस्क्राइब व्हाई, बिकॉज आई वाज वेरी यंग और मैंने इतना कोई ख्वाब देखा था जिसके अंदर आई कुड सी स्नेक्स ऑल ओवर माय हाउस, आई कुड सी स्नेक्स कमिंग आउट ऑफ एवरी पर्टिकुलर थिंग, एंड आई वाज सो यंग और मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लगा। व्हाई? बिकॉज मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी कि हाउ पॉइजनस डिफरेंट स्नेक्स आर, ठीक है। नाउ आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड अ स्नेक इन माय लाइफ बट आई एम स्केयर्ड ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज मुझे जो उसका पीछे से वो मुझे ये कि वो आपको एकदम से पकड़ के काट लेगा, आपको डंग मार जाएगा एंड यू विल डाई ऑफ इट, ठीक है। तो अब बिकॉज ऑफ दैट दिस इज अ रियलिस्टिक फियर, क्योंकि मैं ऑन बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, ऑन बेसिस ऑफ माय नॉलेज ये बात कर रही हूँ कि स्नेक्स आर समथिंग दैट यू आर स्केयर्ड ऑफ, ठीक है। इज अ वाइल्ड एनिमल्स आर समथिंग दैट यू आर जनरली स्केयर्ड ऑफ। व्हाई? बिकॉज यू थिंक दैट दे कैन कॉज यू हार्म। बट अनरियलिस्टिक और इरैशनल फियर जो आपका होता है वो जिस तरह से अगर मुझे चलते हुए पंखे से डर लगने लग जाए, ठीक है, दिस इज अनरियलिस्टिक इरैशनल, कि आप कहें कि पंखा चल रहा है कि अभी गिर जाएगा इस चीज के ऊपर, दैट इज इरैशनल कि वो नहीं गिर रहा है, इट्स टोटली फाइन, मैकेनिकली बिल्कुल ठीक है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। दैट इज एन इरैशनल फियर। इट कैन बी अबाउट एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अबाउट अ सिचुएशन, इट कैन बी अबाउट अ प्लेस जो कि इन इटसेल्फ इट डज नॉट पोज एनी पर्टिकुलर डेंजर टू एनीवन, बट आप उसकी परसेप्शन इस तरह से बना चुके हुए हैं कि वो इरैशनली आपके अंदर एंजाइटी को ट्रिगर करता है। Then lastly, anxiety, sadness or difficulty sleeping immediately after traumatic event. किसी की घर में कोई ऐसी ट्रैजिक इवेंट हो गया है
someone died, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा होगा, किसी के घर में कोई मौत फौत का हो गया, because this is normal thing, आपकी लाइफ में चीजें होती हैं, and because of that you cannot sleep, ठीक है। आप एंजाइटी फील करते हैं, आपको बार बार शायद रोना भी आ रहा होता है, आप बहुत ज्यादा उसकी वजह से आपकी धड़कन तेज होती है, आप स्वेट कर रहे होते हैं, आप सही से बात नहीं कर पा रहे होते, आपको सांस चढ़ रहा होता है, आपके हवास बाख्ता होते हैं, अगर बहुत कोई इस तरह की आपके क्लोज उसके साथ है, एंड यू कीप ऑन फीलिंग दैट फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। दैट इज नॉर्मल, क्योंकि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है, इट विल टेक इट्स टाइम, ठीक है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर ये इस तरह की चीज किस तरह बन जाती है, जब आपको बहुत ज्यादा बुरे ख्वाब आना स्टार्ट हो जाए, आपको एक्सेसिव फ्लैशबैक्स आना स्टार्ट हो जाए, उस इवेंट को आप बार बार देखें, उसको बार बार उसको फील करें, आप उसको फील करने की वजह से आप अपने आप को फिर अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक आउट करने की कोशिश करें, अपने आप को इमोशनली नम करने की कोशिश करें, जो उस पर्टिकुलर इवेंट और उस चीज के अंदर, दिस इज ये जो हम बात अभी इस टाइम पे डिस्कस करें, दिस इज कॉल्ड अ पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की ही एक डोमेन है, हम इसको डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द कॉजेस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमने पहले भी बात की थी, देयर इज अ फिनोटाइप एंड देयर इज अ जीनोटाइप। जीनोटाइप वो चीज है जो कि आपके डीएनए के अंदर मौजूद है, एनक्रिप्टेड है, ठीक है, आपकी वो ट्रेट्स जो है वो एनक्रिप्ट हुई है आपकी बॉडी में। अब वो एक्सप्रेस हो या ना हो, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स ऑफ योर लाइफ, यानी कि आप जब एक जीन को एनवायरनमेंट मिल जाता है एक्सप्रेस होने का, तो वो एक्सप्रेस हो जाता है, जिस टाइम पे नहीं मिलता तो वो अनएक्सप्रेस्ड रह सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके जो दो पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है, उनमें किसी एक पेरेंट को कि रिसेसिव जीन है, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ हुआ, उनके जीन के अंदर मौजूद है वो चीज, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ हुआ। अगर वो एक्सप्रेस नहीं हुआ हुआ, वो रिसेसिव है, इसका मतलब ये है कि वो आगे बच्चों में पास ऑन नहीं होगा। बट अगर वो एक्सप्रेस हो गया है, वो फिनोटाइप बन गया, तो इट इज वेरी मच लाइकली कि वो किसी एक बच्चे में, एक दो बच्चों में आगे, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट पीपल आर हैविंग, वो आगे एक्सप्रेस हो जाए। नाउ जो आपका फिनोटाइप होता है, इट इज सब्जेक्ट टू एनवायरमेंटल इवेंट्स, कि आपका एनवायरमेंट और आपका जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है जब वो इंटरेक्ट करता है, तो आपका जीनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस होकर जब एक फिनोटाइप बन जाए। ना जो फिनोटाइपिक नेचर है, अब उसकी वजह क्या हो सकती है कि आपको एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिला है, यानी कि रेफरिंग टू द स्ट्रेसफुल इवेंट्स दैट यू हैव सीन और लिव्ड थ्रू, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ अगर गुजार रहे हैं और आपके जीन में अगर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए कुछ चीज है ऐसी, तो इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। Then brain chemistry. Some research suggests that anxiety disorders may be linked to faulty circuits in the brain that control fears and emotions. ठीक है, आपने ब्रेन स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, आपको पता है कौन से स्ट्रक्चर्स जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, एंड हाउ दे कैन बी एक्सेसिवली ट्रिगर्ड। ड्रग विथड्रॉल और मिसयूज, वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर, कि अगर आप कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं या आप कोई ऐसा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, या आपने यूज करना बंद कर दिया, इस वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, तो दैट इज वन कॉज। एंड लास्टली आपकी मेडिकल कंडीशंस के हो सकता है कि आपको आपकी हेल्थ कंडीशन इस तरह की ना हो, आप हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटलाइज्ड हो, उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है। Risk factors for anxiety disorder. Some things also make you more likely to develop an anxiety disorder. जो कि आपके जो different risk factors होते हैं, क्या होते हैं? Risk factors आप नहीं change कर सकते, ठीक है, लेकिन आप बाकी चीजें जो कंट्रोल कर सकते हैं। First of all, history of mental health disorder. If you have been through a mental disorder, यानी कि it can be a mood disorder, ठीक है, उसकी वजह से it raises the chances of developing an anxiety disorder after even after recovering from it. Secondly, childhood sexual abuse, any kind of abuse, not even just sexual, emotional, physical or sexual abuse or neglect during the childhood is linked to anxiety disorders and late life. हमने ये अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेवलपमेंटल कोर्स जो होता है लाइफ का, जो बचपन के कुछ साल होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिसाइसिव होते हैं in relation to how you develop a personality, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ के जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करें लाइफ लॉन्ग, ठीक है। देन ट्रॉमा, कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट आपने देखा है अगर, तो हो सकता है लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सीन समवन्स डेथ, बहुत क्लोज थे आपके और उनकी डेथ हो गई है, इट कैन कॉज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अगर आपने कोई ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट देख लिया, आप किसी फॉर एग्जांपल किसी बॉम्ब ब्लास्ट को देख के आए हैं, आपके सामने कोई इस तरह का वाकया हुआ है, या सिंपली आपके सामने कोई डकैती हुई है, किसी ने किसी को गोली मार दी है,
किसी के साथ कुछ हुआ है, आपने उसको देखा है, यू हैव एक्सपीरियंस इट एट फर्स्ट हैंड, हो सकता है इट कॉजेज यू स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड इवन इट कैन कॉज पैनिक अटैक्स। देन नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, अगर आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आपके साथ होती रही हैं, आपने बहुत अर्ली एज में ज्यादा मसले मसाइल फेस किए हैं, देन इट विल कॉज इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ यू डेवलपिंग एंजाइटी डिसऑर्डर। बहुत ज्यादा अगर आपकी हेल्थ कंडीशन जो है डिटेरिएटेड हैं उसकी वजह से भी होता है। आप अगर कोई सब्सटेंस यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल या कोई ऐसे सिडेटिव ड्रग्स यूज करते हैं आप, जो कि आप जरूरत से बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं कि वो अब्यूज करना स्टार्ट हो गया आप उस चीज को, then it can make you be at a higher risk for anxiety. then आप बचपन में अगर शायद थे तो आप विड्रॉल्ड अगर बिहेवियर था आपका, तो आपका हो सकता है कि आप बड़े होकर सोशल एंजाइटी डेवलप कर लें। अगर आपकी अपने बारे में नेगेटिव परसेप्शंस हैं, आपकी लोएस्ट सेल्फ एस्टीम है, तो आप सोशल एंजाइटी डेवलप कर सकते हैं। Now, what are the different treatments for it? First of all, आपकी cognitive behavioral therapy, इसको CBT कहा जाता है। Cognitive behavioral therapy basically tries to demark and define the particular things जो इंसान के अंदर नेगेटिव हैं और उनको कोशिश करके रैशनलाइज किया जाता है। उसके अंदर बेसिक इसका काम ये होता है। तो पीपल हु हैव डिफरेंट एंजाइटीज, उनको नेगेटिव थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स हैं बहुत ज्यादा, उनको कन्वर्ट करना पॉजिटिव में, उनको बताना हाउ टू रैशनलाइज दोस थिंग्स, उनके इरेशनल फियर्स को किस तरह से रियल लाइफ के सिनेरियोज के अंदर अप्लाई करके उनको नॉर्मल किया जा सके। ठीक है, देन इस तरह के डिफरेंट तरीके अपनाए जाते हैं जो CBT में हेल्प करते हैं। देन ड्रग थेरेपी, अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो जिस टाइम पे आपकी एंजाइटी का लेवल असेस कर लेता है तो वहां पे वो आपको ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिनके अंदर कॉमनली आपके पास या तो आपको जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं SSRIs वो दिए जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जो आपकी लेटेस्ट जनरेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, देन बेंजोडाइज़पाइन्स दिए जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटी साइकोटिक्स। एंटी कन्वल्सेंट्स बेसिकली आपके फिजिकल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट पैनिक अटैक। एंटी साइकोटिक्स जो होते हैं वो उस टाइम पे दिए जाते हैं जब आपको, बेसिकली एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटी साइकोटिक्स दोनों उस टाइम पे दिए जाते हैं जब आप ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर डिजीज में हैं या फिर आप पर्टिकुलरली किसी मेंटल डिसऑर्डर में हैं, यानी कि कोमॉर्बिडिटी आ गई है आपकी कि आप एक वक्त में दो डिसऑर्डर्स को या ज्यादा डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। Then how to manage your symptoms of you being you and identifying your anxiety. How can you manage yourself? अगर for example आपकी anxiety ऐसे level पे है कि that is not very much alarming या वो बहुत ज़्यादा threatening नहीं है, but you think कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में excessively overthink कर रहे हैं, how to control these things? या if you have been diagnosed with a particular anxiety disorder, तो उसको अपने साथ, उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है आपने, या आपने किस तरीके से उसको बेहतर करना है, that is what we are going to see in this particular header. First of all, learn about the disorder. If you have been diagnosed with something, if you have been diagnosed with anxiety, तो you need to learn about your disorder. आपको पता हो कि आपको कौन कौन से symptoms हो सकते हैं, उन symptoms को manage किस तरह किया जा सकता है, उनको manage different situations में किस तरह से करना मुश्किल हो सकता है, and what do you need to be mentally prepared for. अब यहाँ पे ये इसका मतलब नहीं है कि आप गूगल पे जाके और डाल के और सिम्टम्स को मैनेज करके देखना स्टार्ट कर दें। नो, नॉट ऑल। You're not supposed to take the help of the internet, okay? You're supposed to take the help of a doctor जिसने diagnose किया है, आप उससे पूछें, ठीक है? आप उससे सारी information लें if you or if someone you know has been diagnosed with anxiety, ठीक है? Then stick to your treatment plan. अगर आपको मेडिसिन दी गई हैं, आप उन मेडिसिन को लें, प्रॉपरली टाइम पे लें। अगर आपको थेरेपेटिक आगे रेफर किया गया है थेरेपीज के लिए, आप उन थेरेपीज को ऑन टाइम लें। आप उन ड्रिंक्स को और फ्रूट्स को अवॉइड करें जिनके अंदर कैफीन होती है। आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मत लें, टी, कोला, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कॉफी, इन चीजों को मत लें, बिकॉज ये आपका मूड ऑल्टर करते हैं एंड ये आपकी जो मेंटल स्टेट है इसको अलर्ट करते हैं इनएक्सेसिवली। आपको बॉडी को बिल्कुल जरूरत नहीं है इन चीजों की, बट बिकॉज कल्चरली हम इस चीज को अडॉप्ट कर चुके हैं। इवन आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट टी इन द मॉर्निंग। उसकी वजह क्या है कि बिकॉज वी हैव मेड आवर बॉडीज यूज्ड टू दिस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस। तो जब हम नहीं करते तो विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, वी फील कि हम एंशियस हो रहे हैं। सो यू नीड टू कट डाउन ऑन दीज थिंग्स जिस टाइम पे आपको पता लग जाए कि यू आर एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी।
which is at a unhealthy level. Then don't use alcohol and recreational street drugs, यानी कि जो भी आपके मंशियात हैं उनको इस्तेमाल मत करें मेहरबानी करके। अगर आपको या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिनको एंजाइटी है, इसके अंदर आपका इवन स्मोकिंग का भी इसमें आ जाता है, यानी कोई भी किसी किस्म का भी आप अनचाहे सोशल बिहेवियर जब मत अडॉप्ट करें। देन ईट राइट एंड एक्सरसाइज, अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, आपके केमिकल्स जो हैं, आपकी बॉडी के केमिकल्स जो हैं वो आप हार्मोन्स जो हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ताकि वो एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकें आपके, क्योंकि दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर मूड एज वेल। एंड आप अपनी बॉडी को एक्टिवेटेड रखेंगे अगर, तो जो आपकी वो सिंपैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट हुई है वो आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करने के बजाय वो आपके मसल्स और आपकी जो एक्टिविटी होगी उसके थ्रू it will be released instead of becoming an full-fledged panic attack for you. Then get better sleep. Now अब anxiety disorder के अंदर often you have sleep problems, या तो आप सो सकते नहीं हैं, या you have a problem maintaining your sleep, या फिर you have a problem in going to sleep, about time लगा देता है सोने में। जो insomnia होता है, that is of 3 basic types. It's either onset और इंटरमिटेंट और रिकरेंट, यानी कि आप उसको बार बार आपको मेंटेनेंस इंसोम्निया, ठीक है, यानी कि आप कैन मेंटेन योर स्लीप, ठीक है। तो ऑनसेट का मतलब ये है कि आपका सोने के टाइम पे इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गो टू स्लीप, एंड इंटरमिटेंट का मतलब है कि आप बार बार उठ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू हैव एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स आर कॉमन, ठीक है, बट टू मेक यू आपको like to help you in managing your sleep properly, there are different exercises जो की जाती हैं, there are different kinds of meditation techniques that can be done, relaxation therapies की जाती हैं, and you need to talk to your doctor if you have any sleeping problems. आपको कोई भी इस तरह का मसला होता है, you need to tell your doctor कि वो या तो कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर दे, आपको प्रिस्क्राइब कर दे, या फिर आपको कोई इस तरह की टेक्निक बता दे जिससे आप अपने आप को माइंड को रिलैक्स कर सकें और सो सके। देन यू नीड टू लर्न हाउ टू रिलैक्स। आप अपनी बॉडी को ये मत बताएं कि मेरी हार्ट बीट तेज है, या मुझे गर्मी लग रही है, या मुझे परेशानी हो रही है, या दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू ब्लो मी अप, या एनीथिंग लाइक दैट। आप खुद को जब तक ये नहीं बताएंगे कि इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल ओके, ऑल इज वेल, जब तक आप अपने आप को ये नहीं बताएंगे तब तक योर बॉडी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। अगर आप बताते रहेंगे ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अगर आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बता ही रहे कि यू हैव टू स्टे अलर्ट, यू हैव टू स्टे पैनिक, तो उसका फायदा नहीं है। यू हैव टू टेल योरसेल्फ, यू हैव टू लर्न हाउ टू रिलैक्स, हाउ टू बी माइंडफुल, ठीक है, एंड हाउ टू अनवाइंड आफ्टर हैविंग अ स्ट्रेसफुल डे। Going through stress is normal, लेकिन उसके बाद आपने उसको किस तरह मैनेज करना है, that is solely dependent on how you learn to relax yourself. Then keep a journal. Writing helps. आपको एंजाइटी है अगर, तो राइटिंग इज अ ब्लेसिंग। आप लिखें, जस्ट बिकॉज होता क्या है कि जिस टाइम आप लिखते हैं तो यू आर बिकॉज आप सोच नहीं रहे, आप लिख ही जा रहे हैं, या आप बोल नहीं रहे। जब आप बोलते हैं तो आपकी सोच इंटरफेयर करती है, एंड समटाइम्स मेक्स डिफरेंट ब्लॉकेजेस जो आपको रोक देती है वो चीजें एक्सप्रेस करने से जो आप बोल नहीं पा रहे होते उस टाइम पे, ठीक है। तो बिकॉज वो एंजाइटी प्रोवोकिंग होती है, यू डू नॉट गो थ्रू देम, उनको वर्बली आप नहीं निकालते अपने मुंह से। तो व्हेन यू राइट देम कोई बैरियर्स नहीं आते, एंड व्हेन यू राइट देम वो आपके सिस्टम से निकल जाती है। उसके बाद उसको बेशक फाड़ दें या जला दें, व्हाटसोएवर यू वांट टू डू विद इट, ठीक है। देन मैनेज नेगेटिव थॉट्स। अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई वायरसफुल थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उसकी जगह को उनको रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट से, ठीक है। जिस टाइम पे आप उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो आप खुद ही तो नोट करेंगे, लाइक व्हेनेवर यू सी समथिंग दैट इज नेगेटिव फॉर यू, यू फील कि आप उसको रिप्लेस कर दे पॉजिटिव से। ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, इट विल cause a lot of, it will help you a lot. देन अपने फ्रेंड्स को मिले, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, उनके ताकि आपकी जो सोशल एंजाइटी है वो डेवलप ना हो। एंड देन उसके बाद ये कि यू हैव टू सीक सपोर्ट व्हेनेवर यू नो कि आपको इस तरह का कोई मसला है, आप अपने आप को अकेले नहीं छोड़ना चाहते उस टाइम पे। यू वांट पीपल टू नो दैट यू आर फीलिंग थ्रू सच पर्टिकुलर थिंग, यू नीड टू टॉक टू अदर्स, यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, एंड यू नीड टू क्रिएट अ सपोर्ट ग्रुप फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। एंड
एंजाइटी के सिम्टम को मैनेज करने से पहले, उसके लिए कोई दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें कि आपके जो डिफरेंट मेडिसिन जो अक्सर लोग ले लेते हैं बड़े आराम से, दे हैव डिफरेंट केमिकल्स जो आपके एंजाइटी के सिम्टम्स को बहुत ज्यादा मजीद खराब कर सकते हैं. एंड इवन इफ यू हैव एंजाइटी और आपको कोई और प्रॉब्लम हो गई है, कोई फिजिकल इलनेस हो गई है, इवन एट दैट टाइम इफ यू थिंक कि आपको बहुत ज्यादा मेडिसिन दे दी गई हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करेंगे. हो सकता है कि वो मेडिसिन जो है वो आपको मजीद आपके सिम्टम्स को ट्रिगर कर दें. देन let me just conclude this for you कि आप जो भी कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट, it takes time to find the right treatment. ठीक है. If you have more than one anxiety disorders, you may need different types. हो सकता है कि आपको medicines along with therapy, along with support groups सब कुछ दिया जाए, but there is it takes some time. ठीक है. You need to know how to manage your symptoms so that you can live a better life rather than depending on therapies or depending upon support groups or any other things or medicines. You need to know how to control your particular issues.